क्योंकि डर सबको लगता है एंड इट्स ओके टू बी स्कैर्ड। हाय एवरीवन, दिस इज बीइंग जेके। सो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो आई एम डैम श्योर दैट यू आर ऑल्सो फीलिंग नर्वसनेस एंड फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू. So in this video I'm going to share you the most important tips and you should really watch before your interview. So first of all, let's accept the fact that डर सबको लगता है. Everyone is used to have this nervousness before an interview. एंड कभी कभी तो लोगों को किसी के सामने बात करने में भी डर लगता है, पब्लिक में बात करने में डर लगता है. देयर आर लॉट ऑफ फियर्स एंड ये तो इंटरव्यू है, दिस इज योर जॉब, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is completely okay to be nervous. It is completely okay to be anxious before an interview. So let's accept the fact कि डर सबको लगता है, ठीक है. You are not the only one who is feeling that anxious. And अगर आप nervous हो भी तो it is showing that how serious you are towards that job. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I am just going to share you the brief कि इस वीडियो में what I am going to share. So I am going to share you the 3 best must do things before an interview, and also I am going to share you the bonus tips. So don't skip the video in between. You just have to watch all of these tips so that you will understand what the bonus tip is all about. Thing that you should ask yourself, to overcome this nervousness. Ask yourself that are you fully prepared? Like आपके अंदर are you feeling something कि यार मुझे यहाँ पर थोड़ा सा lack लग रहा है and I should really feel, because whenever we feel nervous we doubt ourselves और कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, which is very okay. So just make sure that whatever that you have written in your resume, कि जो भी आपने लिखा है you are fully confident about that. ओके. एंड अगर आप कोई चीजें भूल रहे हो जो आपने कुछ बहुत साल पहले करी थी, जस्ट गो बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, गो बैक टू योर वट एवर द मटेरियल दैट यू हैव एंड जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्योंकि कभी कभी बहुत साल पुरानी चीजें हमें अभी तक हम रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रिकलेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दैट यू हैव बीन मेंशन इन योर रेज्यूमे. And make sure that you read job description. It is totally very important. And make sure that you also read about the company, that in which company, that whatever the interview that has been going on. So company के बारे में you should really read. company का किस domain में your profile is, you should really read about this and just make yourself fully prepared. Okay, कि ये ना हो कि before an interview you just forgot to read the job description. So make the basic things done properly. इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपकी जो नर्वसनेस है वो कहीं ना कहीं एक आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट हाँ, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई हैव मैंने जो अपने रेज्यूमे में जो भी लिखा है आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट एंड मैंने उस चीज को एक बार गो थ्रू भी कर लिया है, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया. सो माई एफर्ट्स ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड इज डन फ्रॉम माई साइड. तो कहीं ना कहीं एक यू विल फील दैट ठीक है, आई एम समवेयर प्रिपेयर्ड एंड आई नो कि कोई भी क्वेश्चंस आएंगे जो जनरल क्वेश्चंस होंगे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लास्ट एक्सपीरियंस और अबाउट योर कॉलेज और एनीथिंग, you know your answers, right? So just prepare all those basic things for your preparation जब आपको कहीं भी कुछ भी लग रहा है. Okay. So the second thing, which is the most important thing, and most of the candidates just forgot to do this, and if you are watching this video, then you are already in top 1%, of getting selected, of getting that, pass that interview like a pro. So the second thing is remind your strength. Yes, remind your strength. आप इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो, so you should feel much confident about yourself. That is how you showcase yourself, right? So आपको अपने आप को सेल करना है इंटरव्यू में. तो अगर आप सेल कैसे करोगे?
अपनी स्ट्रेंथ को रिमाइंड करो. दिस इज द बेस्ट टाइम बिफोर एन इंटरव्यू टू रिमाइंड योर स्ट्रेंथ. उस प्रोफाइल के लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप whatever the strengths that you are having, or maybe it's not always the strength that associated with the facts and the figures and everything. Sometimes your strength is obviously from the personal point of view, like you are very courageous, you take your stand, anything which you see as your strength. And strength को just don't define by yourself. strength को हमेशा अपने past जो भी आपने चीजें करी है, which is like where you have feel good about yourself कि हाँ यार I have just achieved this thing. So और मैंने इस चीज से ये सीखा, नाउ दिस इज माई स्ट्रेंथ, आई हैव लर्न दिस थिंग्स. और ये मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लास्ट अपनी चीजों में भी काफी यूज करी है. लाइक रेजिलियंस कैन बी योर स्ट्रेंथ, like how you communicate yourself, how you showcase yourself, that is also your strength. So just remind yourself all of these strengths that you're having, क्योंकि किसी को भी आपकी वीकनेस पे आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते हो. हमेशा कोई भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे अपने आप को सेल कर सकता है. सो स्ट्रेंथ, पहली चीज तो ये होगी कि योर एनर्जी विल लाइक अपलिफ्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी. अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को खुद अपनी रिमाइंड करोगे, पेन और पेपर पे लिख लो यार कि what is my strength, और ऐसी है, अगर ये स्ट्रेंथ है भी तो क्या ऐसा पास्ट में कुछ हुआ और which I actually feel confident about myself. तो ये स्ट्रेंथ जो होंगी ये आपको हमेशा बिफोर एन इंटरव्यू एक पॉजिटिव बूस्ट देंगी, आपकी एनर्जी में एक अपलिफ्ट जरूर होगा. और नर्वसनेस, आई थिंक नर्वसनेस को वो इतना डाउन कर देगी दैट यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार अगर मैं इस जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ ना तो मेरे पास स्ट्रेंथ है इस जॉब को करने की. आई हैव दोज मैचिंग स्ट्रेंथ्स, आई हैव दोज बेसिक स्ट्रेंथ्स कि हाँ मैं इस जॉब में कर लूंगा. क्योंकि नर्वसनेस हमें लगता है क्यों है, बिकॉज समवेयर वी डाउट आवरसेल्व्स, समवेयर वी फील कि मे बी कुछ गलत ना पूछ लेना, ऑल दोज थिंग्स. तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को रिमाइंड कर रहे हो देन यू इवेंचुअली कमिंग इन दैट कॉन्फिडेंस जोन ऑफ योर सेल्फ. और एक चीज बहुत अच्छी होगी इसमें कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, सो जो भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, समवेयर इन योर माइंड योर स्ट्रेंथ इज कमिंग अगेन एंड अगेन. आपकी एक फिल्म चल रही होगी आपकी, कहीं ना कहीं एक कुछ पॉजिटिव एंड गुड कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेंथ चीजों की आपके माइंड में जब आप आंसर दे रहे होगे. सो इससे एक फायदा एक और भी होगा, लाइक आपकी ऑब्वियसली नर्वसनेस कम होगी, यू वुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. एंड आपके आंसर्स में भी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को ऐड करोगे, सो इट इज ऑल्सो द बूस्ट अप इन योर आंसर्स, कि आपके आंसर सिर्फ एक फैक्चुअल आंसर्स नहीं है, एक थ्योरेटिकल आंसर्स नहीं है. आपके आंसर्स में आपका एक पर्सनल यूनिक टच दिख रहा है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है. सो जस्ट रिमाइंड योर स्ट्रेंथ्स बिफोर एनी इंटरव्यू दैट यू आर गोइंग, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ को हम कभी खुद भी भूल जाते हैं. इट इज वेरी ओके कि आप बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करो. आई नो बेसिक प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें, मतलब रेज्यूमे एंड ऑल, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये तो है ही, ये तो हर कोई करके जा रहा है बट आप क्या अलग करके जा रहे हो, आप अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ याद दिलवा के जा रहे हो. सो बिफोर एनी इंटरव्यू जस्ट रिमाइंड योर स्ट्रेंथ्स. आपकी कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, पेन एंड पेपर पे पेन डाउन कर लो. एंड यू थैंक मी लेटर आफ्टर दिस कि आपकी स्ट्रेंथ अगर आप उस टाइम रियलाइज करवा रहे हो, सो आप सोचो कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना अपलिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो द थर्ड टिप, I mean, this is the third thing which I would like to share you, and this is the basic reality. ठीक है. So interview में क्या होता है? Interview में we conversate with other person. Like हम लोग बात करते हैं, the question and answers things are going on, but eventually it is a conversation, right? You're having a conversation with another person, maybe in a more formal way. मतलब obviously आप ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो, but you are having conversation either in a formal or formal, but here obviously it's in a formal way. So just remind yourself that ये जो इंटरव्यू आप दे रहे हो ना, it is just a conversation, and it is a conversation यार. Like nobody can't say that कि यार ये तो conversation नहीं होगी.
अगर कॉन्वर्जेशन नहीं है देन यू मस्ट बी टॉकिंग टू सम रोबोट इन योर इंटरव्यू, जो कि नहीं है, बिकॉज यू इवेंचुअली आर टॉकिंग टू सम ह्यूमन ओवर देयर. So this is a conversation. First of all, just remind yourself, and this is not a do or die situation for you, right? कि अगर ये इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, so just don't think about this do or die situation. The more you think that it is, you know, the last interview, it is the most important interview, it is that interview, the more importance that you give to any interview, the more nervousness you have inside you. तो अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस जोन में लेके आना है, तो यू शुड फील लाइक लाइट कि हाँ, इट्स नॉट अ डू और डाई सिचुएशन. कोई नहीं, इस ये इंटरव्यू है, इट्स ओके. इफ इट वेंट वेल, अमेजिंग. इफ इट डजंट, इट्स ओके. मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में हमेशा मैं ये चीज नहीं करूंगा या करूंगी. ओके, तो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस. लाइक एक कह लो एक एक्सपीरियंशियल कॉन्वर्जेशन हो रही है आपकी, होने वाली है एक इंटरव्यू में. सो थिंक लाइक दैट कि आपकी एक्सपीरियंशियल कॉन्वर्जेशन हो रही है जिसमें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. एंड ये दिस इज बेसिकली अ कॉन्वर्जेशन इन अ मोर फॉर्मल वे. ओके, आप जितनी इस चीज को एक पॉइंट, आई नो समवेयर यू फील कि यार ये ना चीज हो नहीं पाती है, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. एंड हाउ कैन यू से कि हम डू और डाई सिचुएशन कर दें? You just have to trick your mind. You just have to trick your mind. क्योंकि जितना वही एक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप जितना भी कोई भी चीज को इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो चीज उतना ही आपको यू नो लाइक फियरफुल बना देगी. हमें फियरफुल नहीं, हमें फियरलेस बनना है. सो जस्ट ओके, अगर होता है इट्स ग्रेट, नहीं होता है आई हैव एन एक्सपीरियंस विद माई सेल्फ. मैं एक एक्सपीरियंस लेके तो जा ही रहा हूँ अपने साथ, ये मुझे पता है. हो गया ऑसम, नहीं हो गया इट्स ओके. बिकॉज नर्वसनेस में ना हम हमेशा ये क्वेश्चन और ये एक लड़ाई हमारे दिमाग में चल रही होती है कि यार क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे, अच्छा वो ऐसे पूछ सकते हैं, और क्या पता जो इंटरव्यूअर हो उसका मूड ही खराब हो. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो. लाइक यू कैन कंट्रोल द इंटरव्यूअर्स मूड, राइट, बट you can control your behavior and your like maybe you're talking to your future boss, right? So कुछ ऐसा imagine करके just start your conversation. Just don't start your interview कि हाँ यार ये एक interview है, एक question आएगा एक answer होगा, एक question आएगा एक answer होगा. नहीं, just a conversation that you are having. So just imagine yourself कि आप अपने future boss से बात कर रहे हो, तो वो एक uplift जो है, एक इजी फ्लो ऑफ आंसर्स, वो एक बहुत नेचुरल दिखेगा. ऐसा नहीं दिखेगा कि यू नो यू जस्ट आप एकदम कहीं से रट के आए हो, क्रैम करके आए हो कुछ लाइंस एंड यू आर जस्ट स्पीकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. सो जस्ट मेक इट अ कॉन्वर्जेशन. यू नो द मोमेंट योर इंटरव्यू बिकम्स अ कॉन्वर्जेशन एट वन पॉइंट ना, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया. एंड आफ्टर यू नो जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा, यू विल फील लाइक यार इतना टाइम चला गया, इवन आई डोंट नो. एंड समवेयर यू फील यार interviewer has given a lot of time, which is a very plus point. Because अगर interviewer आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है, it means he wants to select you. He wants, you know, he wants actually, क्योंकि वो चाहता है कि आप select हो, इसलिए वो आपको chance दे रहा है और questions पूछ के. So take it as a conversation. Yeah. So the bonus tip. I know you must be waiting for this bonus tip, and don't get surprised. Just listen to this first, okay? Don't put your logics on it first. Just listen, then do it, and then you will realize कि bonus tip bonus क्यों है आप लोगों के लिए. Okay? So the bonus tip is, before an interview you should have something your favorite. Yes, like I'm having this homemade chocolate right now. So you can have something which is your favorite. Okay? तो फेवरेट खाने से क्या होगा? सबसे पहले तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू एनीथिंग. कोई भी आपकी फेवरेट हॉबी है, डांस कर लो एंड ऑल दैट. समटाइम्स बिफोर इंटरव्यू वी डोंट हैव मच टाइम, राइट? तो बट एक चीज है,
आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंटरव्यू से पहले कुछ भी कर रहे हो, यू वोंट फॉरगेट टू ईट समथिंग, राइट? बिकॉज फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट? तो फूड में अगर आपको अपनी नर्वसनेस कम करनी है, यू शुड फील मोर कॉन्फिडेंट, यू शुड फील मोर गुड अबाउट योर सेल्फ, हैव योर फेवरेट फूड, एनीथिंग. And disclaimer here, I'm not suggesting here to have anything alcoholic. So अगर आप वो सोच रहे कि you know my favorite beverage is this or that, I'm not suggesting here to be drunk or to you know like you should be conscious for your interview. So I'm suggesting here to have something favorite in your food. रिलैक्स और एक हैप्पीनेस कहीं ना कहीं तो आ जाती है अपना कुछ भी फेवरेट खा के. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड इंटरव्यू में आपको लाइक यू नो पीपल से जस्ट बी योर सेल्फ. तो अगर आप अपना फेवरेट खा के जा रहे हो, देन इवेंचुअली बीइंग योर सेल्फ ना. आप एक हैप्पीनेस एक हैप्पी मूड में होंगे, और हमें एक हैप्पीनेस की मूड में ही तो जाकर इंटरव्यू देना है. अब आप कोई भी चीज़ को अगर आप डर से करते हो, और अगर उसी चीज़ को अगर आप एक हैप्पीनेस और एक एक्साइटमेंट से करते हो, एक स्माइल से करते हो, तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है, राइट? जस्ट हैव योर फेवरेट फूड बिफोर गोइंग इन इंटरव्यू, बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू, जहाँ पर अपने आप को आप प्रिपेयर करो. सो प्रिपेयर करने के साथ साथ आप अपने आप को यू शुड मेक योर सेल्फ फील कंटेंटेड एंड हैप्पी. क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन से और इन सब से नहीं होती. प्रिपरेशन खुद को अपलिफ्ट करने से भी होती है. तभी you just click on this interview like video and you are watching this video because you really want to overcome that nervousness और anxiety और fear जो एक इंटरव्यू से पहले होता है. क्योंकि पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, somewhere it has that effect कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक चेंज आएगा. और इंटरव्यू में जो एक फैक्ट है जो एक इंटरव्यूअर एक्चुअली में नोटिस करता है, आपके आंसर्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी. सो बॉडी लैंग्वेज को अगर आपको एक you should feel confident, you should feel calm, relaxed. तो अपनी फेवरेट फूड खाने में क्या बुराई है?